Hey everyone, am I audible to you guys? हाँ बेटा, आवाज़ आ रही है? हाँ, आने दो बच्चों को, 5 मिनट वेट करते हैं, ठीक है? लेट देम कम, देन वील स्टार्ट. ओके guys, thing is, in the last class we have done certain definition of enthalpies, right? हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बॉन्ड एनर्जी, कंबशन सब किया था, करेक्ट है ना? Yes. एंड एक और चीज बताया था मैंने तुमको, विच इज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा एनजीआरटी होता है, राइट? हाँ कि ना? एंड इस केस के अंदर जो वर्क डन निकलता है केमिकल रिएक्शन में, दैट इज ऑलवेज माइनस ऑफ डेल्टा एनजीआरटी. और हमेशा ये याद रखना, वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होता है हमेशा? जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन कितना रहेगा? 0. 0. या तो दैट थिंग वी हैव डन राइट इन द लास्ट क्लास. नाउ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना है. आई गेस तुम्हारा ट्रैक बी के अंदर केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, राइट? Yes, sir. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, तुमने एक टॉपिक किया था रेजोनेंस. रेजोनेंस क्या होता है? इफ a given molecule is represented by multiple structures, in short multiple Lewis dot structures, which is also known as canonical structures, and none of the structure can represent the actual properties of a molecule, then the actual structure तो पर्पल कलरचा ड्रेस ते ना हळदीचा जरा ब्लाउज ते ना जरा हा तो त्या ड्रॉवर मध्ये Antra. हा, त्याच्या. का ग? Okay. Then the actual structure will be the hybrid of all the structures. गेटिंग इट? तुमने काफ़ी एग्जाम्पल्स करे होंगे रेजोनेंस के, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने ऐसा किया होगा कि एक ओजोन था. दिस ओजोन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, दिस इज नेगेटिव वन, दिस इज पॉजिटिव वन, और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर. यहाँ पे ये पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था. जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, which will be like this. I got a positive charge, oxygen, oxygen, partial bond, delta negative, delta negative. ठीक है? तो that is the actual molecule and these are the canonical structure.
तो ये जो है ना, ये होते कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. This is the hybrid structure. Similarly, carbonate molecule. In this carbonate, you have three canonical structures like this. And the actual hybrid structure represented by 3 dash is given to you as carbon, oxygen, oxygen, oxygen. Again, I'll have a partial pi bond, partial bond, partial bond, and the negative charge is getting evenly delocalized, that is minus 2 by 3, minus 2 by 3, and minus 2 by 3. Again, you had a structure of benzene in which I have a pi bond like this, and another canonical structure, I do have pi bond like this. The hybrid structure will be intermediate of all this structure, that will be like this. Getting a point? Now, again, what do you mean by resonance energy? The energy difference between the canonical structure and the hybrid structure. Tell me one thing, which is more stable, hybrid structure or canonical structure? Hybrid. Yeah, hybrid structure is more stable than canonical structure. Now understand that hybrid structure is more stable than the canonical structure. The energy difference between the canonical structure and the hybrid structure is known as resonance stabilization energy. Got that? क्या बोलते हैं उसको? रेजोनेंस Stabilization. हाँ, कि रेजोनेंस की वजह से उस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कितना एनर्जी कम हुआ, तो उस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी. गेटिंग इट? गेटिंग इट? Yes, sir. या लिख लिया? Guys have written that? Should I scroll up? किसी को चाहिए स्क्रॉल अप करूं या फिर सही है इतना? डन. ओके श्रेया. एवरीवन हैव कूल. तो पता लग गया ना कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर और हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो एनर्जी डिफरेंस आएगा उसको रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं. गेटिंग इट? कि कितना मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हुआ बिकॉज ऑफ रेजोनेंस.
समझ में आया? Yes, sir. वेरी गुड. नाउ लिसन. तो दैट वाज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू, okay, okay, done. Now listen, we will solve a particular question. ठीक है, based on the, what is that, thermochemistry, like chemical reaction set of questions. ठीक है, and we will move ahead then. Let us solve certain question based on that. ठीक है, I'll just give you a just how to solve this question, then we'll move ahead. अच्छा, अब तक जो हमने सीखा, जस्ट ये बताओ कि किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं. चल ऐसे, समीशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समीशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. एग्रीड? एग्रीड? अरे हाँ या ना? Yes. या ओके. नाउ दूसरी चीज, इट इज ऑल्सो इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी. ये बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी होती है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है? Bond dissociation energy. एग्जैक्टली. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. अब कोई पूछे ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्यों लेते हैं, बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव में होती है. कितना एनर्जी दूं कि बॉन्ड टूट जाए. ठीक है. एंड इज ऑल्सो इक्वल टू समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन, enthalpy of combustion of reactant minus enthalpy of combustion of product. ठीक है. तो ये तीन फॉर्मूला हमको हमेशा याद रखना है टू कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन. अंडरस्टूड? Yes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अच्छा, इन फॉर्मूलेस के अंदर ना हम लोगों ने सिर्फ थ्योरेटिकल वैल्यूज लिए हैं. सो वी हैव टेकन थ्योरेटिकल वैल्यूज. ठीक है. जो भी थ्योरेटिकल वैल्यूज निकलती है ना हमारा कैलकुलेशन में, जैसे बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू हो गई या फिर कंबशन की वैल्यू हो गई, ये हमारी सारी वैल्यूज है जो हमने कैलकुलेट करी हैं. ठीक है. इसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी इंक्लूड होती है कि नहीं होती है? बिकॉज रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिससे कि मॉलिक्यूल है ना वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है. राइट? Yes, sir. तो क्या हमने इसके अंदर कोई रेजोनेंस एनर्जी ली है क्या? इसके अंदर रेजोनेंस नहीं है. अब कैसे करना है कैसे नहीं करना है बताता हूँ. ठीक है. हाँ, इतना लिख लिया. हमको ये तीन फॉर्मूलाज हमेशा यूज करना है. गाइस आगे चलें. ओके. नाउ लिसन. कैन यू सी दैट? Yes. This particular PDF everyone can see? Yes, sir. Now it is visible to everyone nicely, correct? Yes, sir. Yeah. Now understand one thing. We'll start from level 1. ठीक है. And then we'll move ahead. Okay.
Okay. Now, guys, read question number 8. Read question number 8. Apply your common sense and let me know the answer. Determine which of the following reaction takes place at constant pressure. Represent that system that do work on the surrounding environment. मतलब सिस्टम काम कर रहा है सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे. तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जहां काम कर रहा है सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे? गाइस, अगर कोई रिएक्शन काम कर रही है तो काम वर्क डन क्या होता है? व्हाट द वर्क डन इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है केमिकल रिएक्शन के लिए? टेल मी वन थिंग. अगर सिस्टम काम कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? If system is doing work, work done is negative or work done is positive? Negative. अगर वर्क डन शुड बी नेगेटिव. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ डेल्टा एन जी आर टी, राइट? तो अगर वर्क डन नेगेटिव निकलता है तो ये पता लगता है कि सिस्टम काम कर रहा है. अगर सिस्टम काम कर रहा है तो सिस्टम किसके ऊपर काम करेगा? अरे सिस्टम किसके ऊपर काम करेगा बेटा अगर सिस्टम काम कर रहा है तो? Surrounding. तो यहाँ पे मुझे बताओ कि डेल्टा एन जी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए ताकि वर्क डन नेगेटिव हो? Positive. पॉजिटिव होना चाहिए. तो यहाँ पे कोई ऐसी रिएक्शन दिख रही है जहाँ पे डेल्टा एन जी पॉजिटिव है? इन तीनों में से कॉमन सेंस देखो. कैसी बातें कर रहे हो यार? जहाँ पे गैसेस इन्वॉल्व है वही देखोगे ना. तो कहाँ कहाँ पे गैसेस इन्वॉल्व है? हाँ, जरिएगा बताओ. 0 मोल ऑफ गैस है. 0 मोल ऑफ गैस 2 मोल ऑफ गैस दे रहा है तो डेल्टा एन जी क्या हो गया? है ना? या डेल्टा एन जी टू. तो कौन कौन सी रिएक्शन के अंदर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है? यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ गैस हैं? 2. 2 मोल ऑफ गैस कितने मोल्स ऑफ गैस दे रहे हैं? या श्रेया, खुशी करे. 4. तो डेल्टा एन जी क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? Positive. पॉजिटिव. तो आंसर कौन कौन सी रिएक्शन होगी? यहाँ पे तो एक्वस और सॉलिड है तो भूल ही जाओ. ये और ये. तो आंसर क्या होगा? करेक्ट. करेक्ट. Yes, sir. अच्छा. डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर रिप्रेजेंट सराउंडिंग दैट डू वर्क ऑन द सिस्टम एनवायरनमेंट. तो ये क्या होगा? मतलब अगेन रिप्रेजेंट सराउंडिंग मतलब वर्क डन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? अब सराउंडिंग जो है वो सिस्टम पे काम कर रहा है. तो जब सिस्टम पे काम हो रहा होता है तो पॉजिटिव होता है वर्क डन कि नेगेटिव होता है वर्क डन? Positive. हाँ, चलो बताओ. बताओ जरा.
तो डेल्टा एन जी यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए गाइस? एवरीवन, अगर सराउंडिंग सिस्टम पे काम कर रही है तो डेल्टा एन जी क्या होना चाहिए यहाँ पे? W जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। W इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एन जी आर टी। तो W पॉजिटिव कब होगा, जब डेल्टा एन जी नेगेटिव होगा ना। डेल्टा एन जी नेगेटिव का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट में कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस थे? 7, 4 + 7 11, ये भी गैसेस में है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हैं? हाँ, तो डेल्टा एन जी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? फाइनल माइनस इनिशियल। या यहाँ पे भी 3 मोल ऑफ गैस 0 मोल ऑफ गैस बन रहे हैं। अगेन डेल्टा एन जी -3 है। यहाँ पे भी 1 मोल गैस 2 मोल गैस बन रहे हैं, तो डेल्टा एन जी +1 है। यहाँ पे सॉलिड जो है वो लिक्विड बन रहा है। अब सॉलिड जो है वो लिक्विड बन रहा है तो वर्क डन क्या होगा इसमें? यहाँ पे तो कोई वो इन्वॉल्व नहीं है ना, तो आंसर क्या होगा इसके अंदर? आंसर क्या होगा? ओके, नाउ जस्ट टेल मी कि सराउंडिंग कैसे काम कर रहा है सिस्टम पे फोर्थ वाली रिएक्शन में। वर्क डन होता है जहां पे गैसेस इन्वॉल्व नहीं होती, -P डेल्टा V, करेक्ट? अरे हाँ या ना, करेक्ट? यार एक बात बताओ, वाटर का वॉल्यूम ज्यादा होता है कि सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होता है? वो आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। वाटर। सोचो, आइस जो है इट फ्लोट ऑन वाटर, मतलब आइस का डेंसिटी क्या है वाटर की डेंसिटी से? कम। कम। तो वॉल्यूम किसका ज्यादा हुआ, पानी का ज्यादा हुआ कि बर्फ का ज्यादा हुआ? अगर बर्फ जो है फ्लोट कर रही है, अगर बर्फ का डेंसिटी कम है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट? तो बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा होगा कि वाटर का वॉल्यूम ज्यादा होगा? कॉमन सेंस। तभी तो पानी के ऊपर जो बर्फ है इट फ्लोट्स, राइट? हाँ, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो जब आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होता है तो डेल्टा वी क्या होता है इधर? वॉल्यूम कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? हाँ, डेल्टा वी नेगेटिव हो रहा है, तो -P डेल्टा वी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, बिकॉज डेल्टा वी नेगेटिव है। तो आंसर आ जाएगा 1, 2 and 4। गेटिंग इट गाइस? अंडरस्टूड? 1, 2 and 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्व इट फास्ट। जल्दी जल्दी जल्दी, तुम्हारे पास 2 मिनट है। आई वांट द आंसर। इसके अंदर लिक्विड एंड गैसेस इन्वॉल्व है। जहां पे लिक्विड एंड गैसेस इन्वॉल्व होती है तो तुम किस पे फोकस करते हो, लिक्विड पे कि गैस पे? चलो सॉल्व करो। सॉल्व इट, आई विल कम इन 1 minute। हाँ जी, इसके अंदर क्या हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ लिक्विड 1 मोल गैस बन रहे हैं, 2 मोल लिक्विड आ रहा है। तो लिक्विड और गैस में से यू विल कंसिडर गैस।
व्हाट इज द वर्क डन इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन जहां पे गैसेस इन्वॉल्व होती हैं? What is the work done formula in case of chemical reaction where the gases are involved? Yes. वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? Minus of delta NGRT. Hey, what is delta NG here? क्या कुछ है? What is delta NG here? देखो सीन क्या है, 4.5 ग्राम्स ऑफ H2O2 है, 2 मोल ऑफ H2O2, 1 मोल H2 ना दिमाग खुशी, जस्ट लिसन हियर. 2 moles of H2O2 will give me 1 mole of oxygen. How many moles of H2O2 I have taken over here? बेटा 4.5 ग्राम में कितना मोल होगा H2O2 का? Are you getting what I am trying to say? 2 मोल H2O2 लिक्विड, 1 मोल ऑक्सीजन गैस दे रहे हैं. Just tell me one thing. What is the molecular mass of H2O2? H2O2 का molecular mass कितना है? Hey everyone, I want you to participate here right now. H2O2 का molecular mass कितना है? 34. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे इधर? 4.5 by 34. Yes. Now tell me how many moles of oxygen gas comes out? 2 moles give 1 mole. So that many moles will give me 4.5 by 34 into 2. Correct? Yes. This is delta Ng, not -1, because they have given a data in which you have to calculate the number of moles of oxygen with the help of this data, and with the help of this data, when you calculate the number of moles of oxygen, then you will get this. Correct? Now delta Ng will become equal to plus of 4.5 divided by 68. Any doubt in that? No. Very good. Now what is the work done formula? Work done is equal to minus of delta NGRT. इसको जूल्स में चाहिए तो R क्या लूंगा? 4.31. टेम्परेचर कितना है बेटा? 298 minus of this. Correct? Yes. Now tell me how much I will be getting. Minus 1.63 into 10 raised to 2 joules. Are you sure this will give me this much? Minus of 1.63 into 10 raised to power 2 joules. Guys, you understood that? Hey everyone. Yes, sir. आगे चलें. You want to write this down or shall we move ahead? एक सेकंड. Yeah, beta. Okay. Okay, great. Now listen, guys. लिख लिया सबने? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Now listen. What we'll do here is we'll do, solve question number 16. ठीक है? I'll write down the reaction because you don't know the reaction over here. With respect to time, when you do this redox reaction and everything, then you can write the reaction by yourself. But for you, let me write this reaction. Then when zinc solid
is getting dissolved in HCl gas. It's HCl, aqueous. It gives me, the reaction is ZnCl2 aqueous plus hydrogen gas. Getting it? Yes, sir. Now understand one thing. They have started with number of moles of zinc as 2, and they want you to calculate work done in open vessel. वर्क डन कैलकुलेट करो, बाद में ओपन वेसल की बात करता है, पहले वर्क डन कैलकुलेट करो. या गाइस, कैसे कैलकुलेट करोगे? And they're asking in kilojoules, right? तुम सबने ये केमिकल रिएक्शन लिख लिया गाइस? अरे रिएक्शन लिख लिया? Yeah. Now tell me, what is the work done formula here? Work done formula. minus delta NG. Very good. Now tell me, what is the value of delta Ng? What's the value of delta Ng? Yeah. Yeah, Devangi, 2. Because 1 mole gives 1 mole of hydrogen gas. Everything is aqueous solid. So delta Ng comes out to be 2 because 2 moles of zinc are there. So answer I'll be 2 RT. Getting 2 RT. So it'll be like 2 into 8.31 into 298 Kelvin. So what's the answer you will get if you multiply this thing? Two into 8.31 into 298. What's the answer you got? 16th. What's the answer of question number 16 you got? 48 point. Okay. 48.11. C. Okay. Okay. It's not C. Answer given is B. B for buffoon. How many of you got B?
16th given answer is given as B. That is yeah, Khushi. How many of you got B as a correct answer? What do you got over here? 2 into 8.31 into 298. How much I'm getting here? B, right? Because it is minus of 2 RT. So B I'll get. One more thing. If it is a closed vessel, then what is the work done? अगर क्लोज वेसल होता जहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होता, then what is the work done? Devangi, why you took, if they are asking the work done in joules, then why you are taking R as 0.0821? Doesn't make sense, right? Yeah, Khushi, in a closed vessel it is 0. Guys, आगे चलें? Yes, sir. Okay. Okay. Now we'll do another set of questions here. Fine. Question number 59. Solve it or I should do it? Question number 59. What is the relationship of delta H and delta U for a chemical reaction? बस इतना बता दो, देन आगे चलते हैं. एक केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा H और डेल्टा U में क्या रिलेशन होता है, बस ये बता दो. किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा H एंड डेल्टा U के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? डेल्टा H दे रखा -3271 किलो जूल इन दिस रिएक्शन. ठीक है, ये मांग रहा है अगर 1.5 मोल्स होते तो डेल्टा U कितना होता. तो पहले तो एक बात बताओ, ये जो डेल्टा H दे रखा है वो 1 मोल का दे रखा है कि 1.5 मोल्स का दे रखा है? पॉइंट नंबर 1. 1.5 मोल. नहीं बेटा, ये केमिकल रिएक्शन को चेक करो ना यार. अगर तुम इस केमिकल रिएक्शन को चेक करोगे तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बेंजीन का? बेंजीन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1.5 है कि 1 है? तो ये जो डेल्टा H आएगा वो 1.5 के लिए आएगा कि 1 के लिए आएगा? समझ में आ रही बात? 1 मोल के लिए आएगा. तो ये डेल्टा H 1 मोल के लिए कि 1.5 मोल्स के लिए जो दे रखा है इधर? 1.5 मोल्स के लिए. तो यहाँ पे डेल्टा H 1.5 मोल, सॉरी 1 मोल के लिए, तो 1.5 मोल्स के लिए कितना होगा? -3271 इंटू 1.5 किलो जूल. इतना मानते हो? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, जब भी नॉर्मल डेल्टा H दे रखा होता, दैट इज डेल्टा H एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट? करेक्ट. यार एक बात बताओ, जब 1 मोल लिक्विड 15.2 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 3/2 लिक्विड 15 इंटू 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा?
Yes. Very good. 3 by 1 mole gives 6 moles. Then 3 by 2 will give 3 by 2 into 6 moles, correct? Yes. And this is liquid, so I'll not consider about this. Now understand that how many moles of gases are utilized over here? That will be like 45 by 4, and this is like 9, correct? 9 5 का 45 होता है ना? Yes. So it will be like 45 by 5, correct? Or make it like 36 by 4. Denominator constant रख लेता है. तो 36 by 4, करेक्ट? तो डेल्टा एन जी क्या हो गया इस रिएक्शन का जब 1.5 मोल्स यूज किए तो? डेल्टा एन जी क्या आएगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. कितना है? किसी की शादी हो रही है यार आज. डन. डन गाइस, डेल्टा एन जी निकल गया. अरे हाँ या ना? हाँ, अब एक बात बताओ, याद है डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा एन जी आर टी, राइट? Yes. डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर तुमको दे रखा है. डेल्टा एच एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डेल्टा यू भी कहते हैं, तो तुमको डेल्टा यू निकालना है, करेक्ट? Yes, sir. डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर कितना दे रखा है 1.5 मोल्स के लिए? इट इज 3271 माइनस ऑफ into 1.5. This is kilojoules, so convert into joules, plus delta H is equal to delta U plus delta Ng will come out to be minus of 9.4 into R is 8.31 and into temperature. How much temperature is there? 300 Kelvin. कोई doubt? Guys, listen. 8.31 is in joules, so I have to use joules over here. This is the silly mistake every student does. Understood? Yes, Yes. sir. If you calculate it, delta U will come near about, just tell me how much I'll get. Guys, you copy this and give me 1 minute. Let me remove this sound distractions, right? Give me 1 minute.
गाइस लिख लिया बेटा, लिख लिया? यस सर। कोई डाउट इसके अंदर? समझ में आया प्रॉब्लम्स कैसे करनी है? यस सर। ओके, नाउ सेकंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, दूसरे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है जिसके अंदर डेल्टा एच पी इज इक्वल टू डेल्टा एच पी प्लस डेल्टा एन जी आर टी लगता है। ठीक है, अब थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर दूसरा सेट ऑफ प्रॉब्लम्स इस तरीके से आता है। ओके, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज इन द रिएक्शन। जब 1 मोल Fe2O3 सॉलिड 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके 2 मोल Fe सॉलिड देता है और 3 मोल H2O लिक्विड देता है, तब इस पूरी रिएक्शन का ना डेल्टा एस निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है पूरी रिएक्शन का? डेल्टा एच। डेल्टा एस, डेल्टा एच नहीं, डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज निकालना है। तो यार क्या बताओ, डेल्टा एस का जो फॉर्मूला होगा दैट इज एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट? करेक्ट? यस सर। अच्छा, प्रोडक्ट्स में क्या क्या है हमारे पास? 2 मोल Fe है, 1 मोल Fe का सॉलिड का एंट्रोपी दे रखा है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ मोलर सॉलिड इज गिवन एज दिस। तो 2 मोल का कितना होगा अगर 1 मोल का इतना है तो? बाबा अगर 1 मोल का इतना है, मोलर है ना, तो 2 मोल का कितना होगा? गाइस हाँ, मतलब इंटू 2 करोगे ना डायरेक्टली, कॉमन मतलब नॉर्मली जवाब दो ना, कोई बड़ी बात नहीं है, इंटू 2। ठीक है, 1 मोल वाटर का लिक्विड का एंट्रोपी इतना है, तो 3 मोल का कितना होगा? 3 into 69.9 into 3। 69.9। ठीक है, माइनस प्रोडक्ट में 3 मोल हाइड्रोजन गैस है, तो 3 इंटू 130.7 और 1 मोल Fe2O3 सॉलिड है दैट इज माइनस ऑफ 87.4। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस सर। बाद में कैलकुलेशन करते रहेंगे, बट लॉजिक समझ में आया कैसे निकालना है? यस सर। बढ़िया, सबने लिख लिया? यस सर। लिख लिया? या खुशी? एवरीवन हैज रिटन दैट? यस। अच्छा, एक मिनट में रंगून, कोई दिक्कत नहीं है। डन सर। वेरी गुड, okay, great. That is the same thing you will do. That is the same thing you will do. Okay, now ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, now in question number 83 just read it. For a perfectly crystalline solid, molar enthalpy, molar heat capacity at constant pressure is given to you as this. A एक constant है and molar heat capacity at constant pressure is 0.42 joule per Kelvin per mole at 10 Kelvin. तो मोलर एंट्रोपी एट 20 केल्विन मांग रहा है तुमसे। गेटिंग इट? क्या मांग रहा है? मोलर एंट्रोपी एट 20 केल्विन। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, मेरे पास ए एक वेरिएबल है
और मुझे डेल्टा एस चाहिए, करेक्ट। और परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का टेम्परेचर 0 केल्विन पे कितना एंट्रोपी होता है? According to third law of thermodynamics, for a perfectly crystalline solid, the entropy of a perfectly crystalline solid, yeah, Shreya, it is 0. Now understand one thing, ये जो डेटा दे रखा है तुमको, ये मैं ना यहाँ डालने वाला हूँ ताकि मुझे A का वैल्यू मिल जाए. Getting it? So shall I say that A is equal to 0.42 divided by 10 cube? कोई doubt? No. Very good. So I'll be getting 4.2 into 10 raised to power minus 4. The A value comes out to be in joules. Like the unit will be like joules per Kelvin divided by Kelvin 4. So per minus 4 आ जाएगा. There's a unit. So answer will be in joules, and that too is the answer. Now understand one thing. He want molar entropy at 20 Kelvin. So shall I say that ds, according to first law of thermodynamics, the third law of thermodynamics, at ds from S1 to S2 is equal to AT cube by T. Remember? That is the formula Yes, sir. given to you as NC dt by T integral from T1 to T2, करेक्ट. ये तुम्हारा कौन देता था? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, करेक्ट. नाउ n तो 1 है, दे आर टॉकिंग अबाउट पर मोल, तो n 1 है, तो n ले लिया 1. C की वैल्यू आ गई हमारे पास A की वैल्यू है तुम्हारा 4.2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4 इंटू टी क्यूब बाई टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम टेम्परेचर 0 केल्विन टू टेम्परेचर 20 केल्विन. इतना समझ में आया? पहले A की वैल्यू निकाली, उस A को यहाँ पे पुट किया, AT क्यूब डाला, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ C, एंड N इज 1 मोल, एंड dt by T, I got this, करेक्ट. Yes, sir. ये गया तो आया टी स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बेटा? 4 T cube by 3. minus 4 t cube by 3, करेक्ट. फ्रॉम टेम्परेचर 0 to 20. जब ये पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 4.2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4, टी क्यूब हो जाएगा 8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 3 माइनस 0, तो 0 तो चला गया, तो इतना आंसर आ जाएगा. तो आंसर विल बी लाइक 4.2 इंटू 8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 1. एग्रीड? करेक्ट. वन सेकेंड, डिवाइड बाय 3 भी है, तो डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1.4 इंटू 0.8, तो 1.4 इंटू 0.8, आंसर विल बी हाउ मच? 1.12. या लिख लो इसको, जस्ट राइट इट डाउन फास्ट.
या गाइस, आवाज आ रही है? लिख लिया? आगे चलें? Yes, sir. Okay, now listen. ओके, एक बात बताओ, डेल्टा जी का ये क्वेश्चन पढ़ो. कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट टेम्परेचर T. CH2 double bond CH2 plus Cl2 gas giving a particular product. Delta H is given to you, delta S is given to you. Getting it? Remember the units. Just check the units. This is given in kilojoule and this is given in joules. ठीक है guys? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो रिएक्शन है वो कब होगी? जब डेल्टा जी क्या होगा? When will this reaction takes place? When delta G is guys? अरे ये कोई भी केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है? डेल्टा जी नेगेटिव होता तभी. अब डेल्टा जी केमिकल रिएक्शन के लिए क्या यूज करते हो? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा जी व्हेन यू यूज इट फॉर अ केमिकल रिएक्शन? डेल्टा जी का फॉर्मूला डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. एग्रीड? करेक्ट. एक बार बताओ, Yes, डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए डेल्टा एच क्या होना चाहिए? नेगेटिव. तो ये एंथैल्पी नेगेटिव है. करेक्ट. डेल्टा एस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. पॉजिटिव. अगर नेगेटिव हुआ तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. हाँ, तो डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए. यहाँ पे डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव. तो मतलब ये जो रिएक्शन है वो इंट्रोपी ड्रिवन है कि एंथैल्पी ड्रिवन है? कौन इसको ज्यादा, कौन इसको स्पॉन्टेनियस कर रहा है, एंथैल्पी या एंट्रोपी? कौन इसको स्पॉन्टेनियस कर रहा है, एंथैल्पी या एंट्रोपी? एंथैल्पी. तो इसको बोलते हैं सपोर्टेड बाय एंथैल्पी. दिस रिएक्शन इज सपोर्टेड बाय एंथैल्पी. अंडरस्टूड guys? Understood? Yes, sir. Yes. Now this is very simple set of questions. We'll move ahead. Na 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 na. Okay, guys, ये पढ़ो. Determine the enthalpy of formation of B2H6 in kilojoule per mole by with the help of following reaction. यार एक बात बताओ, इस पूरी रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा है. करेक्ट? कहो हाँ या ना? यस. Yes. मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका निकालना है? B2H6. तो एक बात बताओ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. इतना समझ में आया? यस सर. अच्छा, कितने B2O3 हैं? कितने वाटर है? माइनस ऑक्सीजन का डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? 0. वेरी गुड. एंड माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2H6. ये दे रखा है, ये दे रखा है,
डेल्टा एच नॉट आर भी दे रखा है, तो ये आ सकता है। Yes, sir. समझ लिया कैसे? समझ में आया करना कैसे? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ लिसन, एक सेट ऑफ रिएक्शन होता है इस टाइप से, ये वाला। गेटिंग अ पॉइंट? अब सुनो, इस सेट ऑफ रिएक्शंस को करते कैसे हैं? पूछा क्या है इसने? तीन एंथैल्पी, तीन रिएक्शन दे रखी है, और क्या पूछा है इसने? व्हाट डज ही आस्क्ड? Enthalpy of formation of hydrogen peroxide. Enthalpy of formation of hydrogen peroxide, that too liquid, right? Yes. Now tell me one thing, H2O2 लिक्विड चाहिए अपने को, करेक्ट? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 लिक्विड लिख लो। किससे बनेगा ये एंथैल्पी ऑफ H2O2 लिक्विड का फॉर्मेशन कैसे होगा? यहाँ पे क्या डालू? Hydrogen gas and oxygen gas. एग्जैक्टली, 1 मोल हाइड्रोजन गैस, 1 मोल ऑक्सीजन गैस। अगर मैंने इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल लिया, तो ये जो रिएक्शन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 कंसिडर कर रही है। तो अगर मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एच मिल जाएगा, मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 मिल जाएगा। सबको ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब पता है मेरा फोकस क्या रहेगा? मेरा फोकस रहेगा मैं ये वाली रिएक्शन प्रोड्यूस करूं विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन गिवन ओवर हियर। ठीक है, तो एक मुझे बात बताओ, मुझे H2O2 लिक्विड का प्रोडक्ट में चाहिए, तो यहाँ पे कहीं तुमको H2O2 लिक्विड प्रोडक्ट में दिख रहा है क्या? No, sir. अच्छा, कहीं रिएक्टेंट में दिख रहा है क्या H2O2 लिक्विड? Yes, sir. कहाँ दिख रहा है? पहली रिएक्शन में कितने मोल्स हैं? 2 moles. तुम्हें कितने चाहिए? 1 mole. अब तो मैं क्या करूं, पहले इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं और डिवाइड बाय 2 कर दूं? Yes, sir. अगर मैंने इसको उल्टा किया तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? सीधे रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव है, तो उल्टे रिएक्शन का डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और ये 2 मोल H2O2 के लिए, तो आधे मोल H2O2 के लिए कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले मैंने इस रिएक्शन को उल्टा किया और आधा कर दिया, तो मेरे पास प्रोडक्ट में आया आधा इंटू H4 लिक्विड प्लस 1 H2O2 लिक्विड गिव्स हाफ N2 गैस प्लस 2 H2O लिक्विड। कोई डाउट? और इसका एंथैल्पी हो जाएगा 404 पॉजिटिव। कोई डाउट? 409 पॉजिटिव, करेक्ट? Yes. किसी को डाउट इसके अंदर? No, sir. चलो, वेरी गुड। अब मुझे क्या चाहिए? अब देखो चक्कर क्या है, 2 लिक्विड यहाँ पर है और मुझे यहाँ पे वाटर लिक्विड नहीं चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि मेरा ना 2 वाटर लिक्विड कहीं यहाँ पे है ताकि कैंसिल हो जाए। मेरे को आधा नाइट्रोजन भी यहाँ पे चाहिए होगा ताकि नाइट्रोजन कैंसिल हो जाए। मुझे आधा N2H4 कहीं यहीं पे चाहिए होगा ताकि वो कैंसिल हो जाए। मतलब मेरे पास लास्ट में H2NO2 ही बचना चाहिए। तो यार एक बात बताओ, इधर अगर आधा N2H4 है तो इधर कितना N2H4 होना चाहिए? आधा N2H4 इधर भी होना चाहिए ताकि जब मैं रिएक्शन Yes, sir. करूं तो वो कट जाएगा, करेक्ट? तो कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें N2H4 आधा मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूं? ये तो हमने पहली रिएक्शन यूज कर ली। दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन में N2H4 आ रहा है? Second reaction. तो मुझे आधा चाहिए कि पूरा चाहिए? Half. हाफ चाहिए, तो पूरी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं? Yes, sir. कोई डाउट? तो ये हो जाएगा No, तुम्हारा -311। कोई इश्यू? No, sir. वेरी गुड। अच्छा, अब एक झगड़ा तो खत्म हुआ कि N2/2 भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, करेक्ट? Yes, sir. एक H2O लिक्विड आ रहा है, तो एक H2O लिक्विड से कैंसिल हो रहा है। बचा क्या? एक H2O लिक्विड बचा ना इधर?
Yes, sir. तो मुझे प्रोडक्ट साइड में भी एक H2O लिक्विड आना चाहिए, तो यहाँ पे एक H2O लिक्विड है कि नहीं है, है सर. और मुझे एक हाइड्रोजन चाहिए, तो एक हाइड्रोजन है, तो मतलब एज इट इज रिएक्शन लिख दूं ना, डिवाइड बाय हाफ ना कुछ, एज इट इज लिख दूं, करेक्ट। जब मैं तीनों रिएक्शन को ऐड करूंगा तो क्या होगा, H2O लिक्विड से H2O लिक्विड चला गया, तो बचा क्या, हाइड्रोजन गैस, आधा मोल ऑक्सीजन प्लस आधा मोल ऑक्सीजन, क्या आया, 1 mole oxygen. और ये सब कट गया, बचा क्या, तो मुझे ये रिएक्शन मिली, कैसे मिली, मैंने पहली रिएक्शन को उल्टा किया तो माइनस और हाफ किया, तो -1 रिएक्शन बाय 2, इस रिएक्शन को आधा किया तो +2/2, सेकेंड रिएक्शन बाय 2, एंड प्लस तीसरा रिएक्शन, जब इन तीनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 596 एंड 409, तो 16 में से 9 गए, कितने बचे, 7, ये बचा 8, 187, राइट, करेक्ट। सो दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 लिक्विड। समझ में आई करना कैसे होता है, तुम्हें बहुत सारी रिएक्शन लिखी हुई होंगी, तुम्हें जो रिएक्शन चाहिए हेलो। तुमको उन रिएक्शन को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, ताकि जो फाइनल रिएक्शन बचे वो रिएक्शन हो तुमको चाहिए, गेटिंग इट। और हमेशा Yes, sir. addition और subtraction, अरे यार, ओके, हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ऐसा होता है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। सर आप लास्ट में क्या बोले सर? मैंने कहा तुम्हें ऐड करना है रिएक्शन को, डिवाइड करना है, डिवाइड करके ऐड करना है, उल्टा करके ऐड करना है, तो फाइनली जो तुम्हारी रिएक्शन चाहिए ना वो प्रोड्यूस करनी है विद द हेल्प ऑफ गिवन रिएक्शन, गेटिंग इट। Yes, sir. जब ऐसा कर लोगे ना तो तुम्हें नई रिएक्शन मिल जाएगी, गॉट इट। और हमेशा Yes, ऐसा sir. ही होगा कि एक फाइनल रिएक्शन मिलेगी मिलेगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें फाइनल रिएक्शन ना मिले, गेटिंग इट। Yes, sir. चलो ग्रेट, आगे चलें। Yes, sir. No, sir. 1 minute. ओके, लिखना. ओके गाइस, डन। Yes, sir. ओके ग्रेट, ओके। एक सिमिलर क्वेश्चन करते हैं, देन वील मूव अहेड, ठीक है।
Okay. Guys, question number 25. Can you see that? एक मिनट. हाँ. Okay. Determine delta U naught at 300 Kelvin of the following reaction using the listed enthalpy of the reaction. इस रिएक्शन का डेल्टा U नॉट निकालना है, मतलब डेल्टा H एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है. ये सारे डेल्टा H नॉट दे रखे हैं, मतलब डेल्टा H एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है. तो डेल्टा H एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा H नॉट, डेल्टा U नॉट इज डेल्टा H एट कांस्टेंट वॉल्यूम. वो पहले डेल्टा H नॉट ऑफ ये रिएक्शन निकालो, अबव रिएक्शन. तो अगर तुमको पहला टारगेट पता है कि पहले अगर मैंने डेल्टा H नॉट ऑफ दिस रिएक्शन निकाल लिया, तो मैं डेल्टा U नॉट आराम से निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ डेल्टा U नॉट प्लस डेल्टा NGRT. करेक्ट? यस सर. ओके. नाउ चक्कर क्या, इस रिएक्शन का डेल्टा H नॉट निकालना है किसकी मदद से? इन सारे रिएक्शन की मदद से. करेक्ट? यस सर. हाँ, तो निकालो. तुम्हें रिएक्टेंट में क्या चाहिए? CO H2. प्रोडक्ट में क्या चाहिए? CH4 CO2. तो ब्रिंग CO in the reactant, H2 in the reactant, CH4 in the product, CO2 in the product, and just calculate it. तुमको 2 मिनट 3 मिनट दे रहा हूँ कैलकुलेट करने के लिए. मुझे बस डेल्टा H नॉट कैलकुलेट करके दो. हाँ बताओ, ऊपर वाली रिएक्शन कैसे लेके आओगे गाइस? क्या करूं मैं पहली रिएक्शन के साथ? आई वॉन्ट एवरीवन पार्टिसिपेशन. पहली रिएक्शन के साथ क्या करूं? सर हमको CO रिएक्टेंट में चाहिए तो उसको उल्टा कर देंगे. अच्छा, इसको उल्टा कर दिया और उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? CO रिएक्टेंट में चाहिए 4 चाहिए कि 1 चाहिए? 4. हाँ, तो क्या करूं इससे? अगर ये पहले रिएक्शन, हाँ, तो माइनस पहला रिएक्शन इंटू 4. कोई डाउट? करेक्ट? यस सर. Yes, sir. वेरी गुड. उसके बाद 1 सेकेंड, CO2 प्रोडक्ट में चाहिए. करेक्ट? सी ग्रेफाइट ऐसे नहीं आएगा बेटा, थोड़ा ढंग से सोचना पड़ेगा. एक काम करते हैं, ढंग से सॉल्व करते हैं इसको. ठीक है? चलो, अपने को कौन कौन सा रिएक्शन चाहिए? अच्छा, ये 4 ही. सही है, सही है. देखो, सीन क्या है, CO यहाँ पे भी है और CO यहाँ पे भी है, तो इन दोनों रिएक्शन से पता लगेगा ये कहाँ पे आना चाहिए. ठीक है? CO2 कहाँ का इन्वॉल्व है? सिर्फ यहाँ इन्वॉल्व है. अगर यहाँ CO2 इन्वॉल्व है, कितना इन्वॉल्व है CO2?
1 मोल ही। तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, राइट? तो झक मार के मेरे को ये सेकेंड रिएक्शन तो एज इट इज चाहिए, कोई डाउट? नो सर। तो मुझे ये रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी जिसमें -282.9, क्योंकि ये रिएक्शन इंश्योर करेगी कि मेरे पास CO2 गैस प्रोडक्ट में आ जाए। कोई डाउट? नो सर। yes, sir. वेरी गुड। अब और कहीं CO आ रहा है क्या? नहीं ना। तो एक CO यहां से आ गया, तो मुझे बाकी के CO कहां से मिलेंगे? फर्स्ट इक्वेशन हाँ, तो यहाँ पे क्या करूं? उल्टा करके। हाँ, कितना? 3 हाँ, 3 से मल्टीप्लाई। 3CO आगे 3CO plus 3CO gives 3/2 O2 plus 3 कार्बन ग्रेफाइट। कोई डाउट? नो सर। तो कितना आ जाएगा ये? प्लस 110 इंटू 3। कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। कितने हाइड्रोजन? देखो मेरे पास 3 कार्बन है, क्या मुझे फाइनल में कार्बन चाहिए क्या? नो सर। तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये कार्बन और ये कार्बन आपस में कैंसिल हो जाए। यस सर। तो 3 कार्बन सॉलिड प्लस 6 हाइड्रोजन गैस गिव्स 3CH4। जैसे ही 3CH4 आ गया तो मेरा 3CH4 वाला काम भी हो गया। यस सर। तो इधर कितना आ जाएगा? -74.8 इंटू 3। कोई डाउट? तो यार नो सर। 3 कार्बन यहाँ से गया, 3 कार्बन यहाँ से गया, और क्या चाहिए? 2 H2O चाहिए यहाँ पे। तो 2 H2O कहाँ से आएंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर। तो ये आ जाएगा 2 हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स 2 H2O लिक्विड। तो इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -285.8 इंटू 2 आ जाएगा। करेक्ट? अब जब सबको ऐड करोगे ना तो ऑटोमेटिकली जो तुमको चाहिए वो मिल जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, हियर आई गॉट 4CO। तो 4CO यहाँ पे 6 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 8। यहाँ पे आधा ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन, 3/2। 3/2 तो 3/2 गया, बचेगा क्या? CO2 plus 3CH4 plus 2H2O liquid. I guess I got the final reaction, right? यस सर। फाइनली सब मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ में आया करना कैसे? यस सर। तुम्हें लिखना है कि आगे चलें? और अगर सर 1 मिनट लिखना है। हाँ, अगर एक बार डेल्टा H आ गया तो डेल्टा U कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? डन गाइस? ओके। Now guys, listen. We have to do certain extra things, ठीक है? And after that we'll move ahead. एक काम करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर स्टडी करते हैं। क्या? बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है ना। एक काम करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर के लिए। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है? कैलोरीमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है which can calculate the enthalpy change of a reaction. So what will happen in bomb calorimeter? A particular substance is burnt
in presence of oxygen gas inside a closed container known as bomb. It is used to calculate delta H at constant volume for combustion reaction. Getting it? Understood? Now understand, इतना लिख लिया तो आगे चलें, बताता हूँ करते कैसे हैं. चले आगे. Yes. अब सुनो, हमने क्या किया. बॉम्ब कैलोरीमीटर इस तरीके का दिखता है. ये कैलोरीमीटर वॉल है, ठीक है. इस कैलोरीमीटर वॉल पे ये लाइनिंग है उसका, कैलोरीमीटर वॉल का. लाइनिंग ऑफ कैलोरीमीटर वॉल. बहुत थिक कंटेनर होता है, क्लोज कंटेनर होता है, ठीक है. दिस इज अ क्लोज स्मॉल वेसल जहां पे रिएक्शन होता है. इस पर्टिकुलर ट्यूब से हम कंप्रेस ऑक्सीजन पास करते हैं इसके अंदर, ठीक है. ये बॉम्ब है, ठीक है. नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस इज होल कंटेनर walls, the walls of container. इस कंटेनर वॉल्स के अंदर ना यहाँ पे वाटर है. सो आई डू हैव वाटर. इस कंटेनर के अंदर एक थर्मामीटर है. थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर कैलकुलेट करता है. जितना भी टेम्परेचर राइज होता है ना वो बताता है, थर्मोमीटर. एंड इसी कंटेनर के अंदर एक स्टरर लगा होता है, वे स्टर द रिएक्शन मिक्सचर. तो दिस इज अ स्टरर. वे स्टर द रिएक्शन मिक्सचर, उसको इवनली वाटर को मूव करता रहता है ताकि जो हीट निकल रही है इस बॉम्ब से वो डिसिपेट होती रहे. तो दिस इज द बॉम्ब वेयर द रिएक्शन टेक्स प्लेस. मैंने क्या किया, इसके अंदर ना लेट्स से ग्लूकोज लिया. क्या लिया? ग्लूकोज. एंड मैंने ना 90 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज उठाया. कितना ग्राम उठाया? 90 ग्राम. ठीक है. ना मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर कंप्रेस ऑक्सीजन पास कर रहा हूँ. मुझे पता है जब मैं ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करूंगा ना तो एट क्लोज कंटेनर के अंदर मेरे पास 6 CO2 गैस बनेगा और 6 H2O लिक्विड बनेगा. तो मतलब क्या हो रहा है, बर्निंग हो रहा है. तो जब बर्निंग होगा तो शैल आई से दैट डेल्टा एच नेगेटिव होगा. यस सर. ये जो डेल्टा एच नेगेटिव है ये हीट बाहर आएगा, दैट इज हीट, करेक्ट. जब हीट बाहर आएगा तो वाटर का टेम्परेचर प्लस इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा. सपोज इनिशियल टेम्परेचर वाटर और कंटेनर का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो T1 था, दैट इज इनिशियल टेम्परेचर.
ठीक है, जब हीट बाहर निकला तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? गेटिंग इट? गेटिंग इट? और यस दे रखा है C इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर. हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर दैट इज वाटर प्लस कंटेनर, दोनों का कंबाइन हीट कैपेसिटी दे रखा है. यार एक बात बताओ, हीट कैपेसिटी का फॉर्म मतलब क्या होता है? हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन. मोलर हीट कैपेसिटी नहीं है, हीट कैपेसिटी है. करेक्ट? करेक्ट. यस वो बोल रहा है मुझे ना इस पूरी रिएक्शन का डेल्टा HV चाहिए और डेल्टा HP चाहिए. कोई डाउट? अरे कोई डाउट गाइस? कोई डाउट? अब एक बात बताओ, हाँ अब एक बात बताओ, जितना भी हीट निकल रहा होगा इस कंटेनर में से वो बाहर की तरफ जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा. वेरी गुड. लेट्स से इसी के ऊपर ना क्वेश्चन बना देते हैं. इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हुआ? T2 माइनस T1. कोई डाउट? कोई डाउट? इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना आया? T2 माइनस T1. तो एक बात बताओ, अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 आया तो Q कितना आएगा? C इंटू डेल्टा टी. C दे रखा है और डेल्टा टी आ जाएगा T2 माइनस T1. करेक्ट? यस तो ये Q आ गया. करेक्ट? ये जो Q है कांस्टेंट वॉल्यूम का है कि कांस्टेंट प्रेशर का है? अरे बाबा Q जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम का है, कांस्टेंट प्रेशर का है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन हो रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे? Constant volume. हाँ, तो shall I say that with the help of this Q I can calculate delta HV, and after delta HV I can calculate delta HP which is equal to delta HV plus delta NGRT. हाँ कि ना? Correct? यस Now understand one thing. क्वेश्चन था कि 90 ग्राम ग्लूकोज है. फाइन. एंड लेट्स से हीट कैपेसिटी दे रखा है तुमको 2000 जूल्स पर केल्विन. लेट्स से इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है हमें 300 केल्विन और फाइनल टेम्परेचर दे रखा है 400 केल्विन. कोई डाउट? कोई डाउट? तो एक बात बताओ, जब 90 ग्राम ग्लूकोज बर्न किया तो कितना एनर्जी निकला? क्यू कितना आया? व्हाट इज द एनर्जी फॉर्मूला? Q इज इक्वल टू CDT. C कितना है? 2000. dt कितना है? 100. तो ये कितना है भाई साहब? 200 किलो जूल. कोई डाउट? गाइस कोई डाउट? अरे बाबा No, sir. वेरी गुड. एक बात बताओ, डेल्टा HV कितना हुआ? एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना हुआ? अरे बाबा एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना हुआ? जब 200 किलो जूल एनर्जी दिया ग्लूकोज ने तो कितने ग्राम ग्लूकोज ने दिया था बेटा?
ओए कितने ग्राम ग्लूकोज ने दिया था? 90। क्या बताओ, ये जो रिएक्शन है इसमें कितना मोल ग्लूकोज है? 1. 1 मोल ग्लूकोज कितना होता है? 180 ग्राम। अच्छा, अगर 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज तुमको 200 किलो जूल एनर्जी दे रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो 1 मोल ग्लूकोज कितना देगा? अगर 90 ग्राम 200 दे रहा है तो 1 मोल कितना देगा, विच इज यू सेड 180 ग्राम्स, इतना कॉमन सेंस। 400। 400। तो shall I say that 400 kilojoule of energy will come out when I got 1 mole of glucose? So delta H at constant volume 400 आ गया, माइनस ऑफ 400 किलोजूल, बिकॉज इतना एनर्जी निकल रहा है, हाँ कि ना? यस सर। अच्छा, अब डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर कितना आ जाएगा? डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 400 किलो जूल, है तो पहले जूल्स में कन्वर्ट करो उसको, प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी कितना है इधर? 6 मोल गैस, और ये सॉलिड है, ये भी 6 मोल गैस है, और ये लिक्विड है, करेक्ट? तो डेल्टा एन जी आर कितना आ जाएगा इसके अंदर? व्हाट इज डेल्टा एन जी फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन? इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी कितना है गाइस? अरे बोलोगे डेल्टा एन जी कितना है इस रिएक्शन के लिए? हाँ, अगर डेल्टा एन जी 0 है तो डेल्टा एच पी कितना आ जाएगा? डेल्टा एच पी के इक्वल आ जाएगा, मतलब वो भी 400 किलो, 400 किलो जूल आ जाएगा। कोई डाउट? समझ में आया करना कैसे है? समझ में आया करना कैसे है? क्यू यस सर। एनसी डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच पी हो जाएगा, डिपेंड करता है 1 मोल के लिए निकालना है तो वो सेट करके डेल्टा एच पी आ जाएगा, डेल्टा एच पी आ जाएगा तो डेल्टा एच पी आ जाएगा। गेटिंग इट? लिख लो जल्दी, इसको लिख लिया तुम लोगों ने इसे? नहीं सर। लिख लो लिख लो। टेल मी व्हेन टू स्क्रॉल डाउन, ठीक है? स्क्रॉल डाउन करूं क्या? Shall I scroll down this thing? Yeah. Okay.
ओके, शैल वी मूव अहेड गाइस? आगे चलें? Yes, sir. ओके, नाउ लिसन। यस सर। क्या कह रहे हो? चलो लास्ट टॉपिक करते हैं इसका, ठीक है? ओके, नाउ लिसन। हम लोग कहाँ थे? हाँ, चलो डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम। अभी सिर्फ एक्सप्रेशन लिख लेना, जब फाइनल वो आएगा, इक्विलिब्रियम चैप्टर आएगा, तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है? अब एक चीज समझो, एक इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ क्यू, वेयर क्यू क्या होता है? इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट। इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट। सपोज एक केमिकल रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC एंड DD। एक रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाते हैं। जब इक्विलिब्रियम अटेन करता है तब हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KEQ। तो KEQ का डेफिनेशन होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, that is concentration of product raised to power stoichiometric coefficient into concentration of product raised to power stoichiometric coefficient, concentration of reactant raised to power stoichiometric coefficient, concentration of reactant raised to power stoichiometric coefficient। ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ये प्रोडक्ट ऑफ ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो होता है। कब होता है? जब टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम अटेन कर जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाए, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of backward reaction। और जब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता है ना, तो सेम टर्म को Q बोला जाता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, which is equal to concentration of C raised to power C, concentration of D raised to power D, concentration of A raised to power A, concentration of B raised to power B। ये वो कॉन्सेंट्रेशंस हैं जो टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ। जब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता है ना, तो रिवर्सिबल कंडीशन अटेन नहीं होती है। तुमको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 आर टी लॉग क्यू लिखा जाता है। जब एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो डेल्टा जी इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाता है? डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, ये तुम्हारा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। और ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे। अब एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा जी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस कितना होता है? 0। वेरी गुड। डेल्टा जी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस 0। तो अगर रिवर्सिबल कंडीशन आ गई तो रिएक्शन क्वेश्चन को क्या लिखूंगा जब टाइम इक्विलिब्रियम के इक्वल हो गया? तो
के इक्विलिब्रियम विच इज इक्वल टू, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा, और ये डेल्टा जी नॉट इधर आ जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, ये है। तो ये एक एक्सप्रेशन अभी बस लिख लो, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है। अभी कैसे आया, क्यों आया, हम इक्विलिब्रियम में करेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है। सो डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन कम्स आउट टू बी 0 ऑलवेज। गाइस इतना लिख लिया ऊपर वाला? यस सर। वेरी गुड, इतना लिख लिया? सर ये आपने ये सेकंड लिखा है ना, टेम्परेचर सॉरी टाइम इज नॉट इक्वल टू द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, हाँ तो ऊपर वाले और इस वाले में क्या डिफरेंस है, मतलब बेटा, समझा नहीं। कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होंगी ना जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आपस में, जब फाइनली इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम पे अलग होंगी ना, और किसी और टाइम पे अलग अलग होंगी। हाँ सर। हाँ, तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन है ना इक्विलिब्रियम, जो ऊपर यूज करी वो इक्विलिब्रियम पे यूज करी है, और जो ये कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो ये कोई भी रैंडम कॉन्सेंट्रेशन है। गेटिंग इट? ओके सर। हाँ, ये फर्क है इन दोनों में। डन? गाइस लिख लिया? यस सर। अच्छा, अब एक और चीज सुनो, ठीक है। हाँ, some common sense for resonance। यार एक बात बताओ, मैं 2 केसेस ले रहा हूं, ठीक है। कौन से 2 केसेस ले रहा हूं? पहला केस जिसके अंदर मैं बेंजीन मॉलिक्यूल ले रहा हूं रिएक्टेंट में, इसमें 3 हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं एंड साइक्लोहेक्सेन बना रहा हूं, ठीक है। इसका डेल्टा एच दे रखा है। यार इसमें जो रिएक्टेंट है ना उसके अंदर रेजोनेंस है, बात समझ में आई? ये यस जो सर। रिएक्टेंट है ना उसके अंदर क्या है? रेजोनेंस। वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, कार्बन सॉलिड प्लस CH3OH बनाना है, ठीक है। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH बनाना है, लिक्विड। तो एक काम करते हैं गैस में बना देते हैं। तो 2 कार्बन सॉलिड चाहिए, O2 गैस चाहिए एंड 2 हाइड्रोजन गैस चाहिए। इसके अंदर ना जो प्रोडक्ट है उसके अंदर रेजोनेंस है। ये 2 केसेस हैं, करेक्ट? अरे हाँ या ना? यस सर। अब एक काम करते हैं, मेरे को ना इन लोगों ने बॉन्ड एनर्जीज दे रखी है, बोला कि भाई साहब बॉन्ड एनर्जीज हैं, ये सारे बॉन्ड्स हैं CH बॉन्ड, इन सबका बॉन्ड एनर्जी वैल्यू दे रखा है, हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी वैल्यू दे रखा है, इसके अंदर सारे बॉन्ड एनर्जी दे रखे हैं। तो मैं यार डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकता हूँ ना, इस पूरे रिएक्शन का डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट इज समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, करेक्ट?
Yes, sir. जब मैंने बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यूज यूज करके डेल्टा एच निकाला, तो जब मैं सिर्फ एनर्जी वैल्यूज यूज कर रहा हूं तो क्या मैं रेजोनेंस को कंसिडरेशन में ले रहा हूं क्या? मैंने कभी बोला रेजोनेंस की वजह से इतनी एनर्जी कम कर लेते हैं? नहीं ना। मैं सिर्फ No, बॉन्ड sir. एनर्जी वैल्यूज डाल रहा हूं, तो क्या मैंने रेजोनेंस कंसिडरेशन में लिया? No, sir. तो मैंने एक्चुअल रेजोनेंस कंसिडरेशन में नहीं लिया। तो ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है ना, इसको डेल्टा एच थ्योरेटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो तुमने खुद से कैलकुलेट किया। गेटिंग इट? Yes, sir. तो तुम्हारे हिसाब से हुआ क्या? अगर मैं रिएक्शन देखूं, रिएक्शन कर्व देखूं, तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये तुम्हारा टाइम है जिसमें प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। देखो यार, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है। ये क्या है? रिएक्टेंट का एनर्जी। रिएक्टेंट क्या कर रहा है? एक काम करता है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है। रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट कर रहा है और फाइनली प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये जो एनर्जी था वो रिएक्टेंट का एनर्जी था, और ये जो एनर्जी था वो किसका था? प्रोडक्ट। तो एनर्जीज मिल गई मेरे को। तो प्रोडक्ट का एनर्जी डिफरेंस और रिएक्टेंट का एनर्जी डिफरेंस, ये क्या है? डेल्टा एच। क्या है ये? Delta H. इसे कहते हैं एनर्जी चेंज। तो एक बात बताओ, जब तुमने बॉन्ड एनर्जीज को यूज करके डेल्टा एच निकाला, तो मैं कह सकता हूँ ना ये तुम्हारा थ्योरेटिकल डेल्टा एच है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, एक्चुअली में रेजोनेंस कहाँ पे हो रहा है? रिएक्टेंट में हो रहा है कि प्रोडक्ट में हो रहा है? Reactant में हो रहा है. अच्छा, अगर रिएक्टेंट के अंदर रेजोनेंस होगा तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी? कम होगी कि बढ़ेगी? रेजोनेंस मॉलिक्यूल को क्या करता है? कम करता है। तो शैला से रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी, तो ये एक्चुअल एनर्जी होगी रिएक्टेंट की रेजोनेंस के साथ। गेटिंग अ पॉइंट? Yes, sir. तो जो एक्चुअल एनर्जी मेरे को दे रखी होगी वो कितनी होगी? ये एनर्जी है और ये प्रोडक्ट का एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा ये डेल्टा एच एक्चुअल होगा, Yes, sir. क्योंकि रिएक्टेंट स्टेबल हो रहा है तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी प्रोडक्ट की एनर्जी से, तो ऑब्वियसली क्या होगा? पहले तुम्हारा रिएक्टेंट का एनर्जी इतना था, तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ज्यादा था, तो ये डेल्टा एच था। अब रिएक्टेंट स्टेबल हो गया तो ये इतना एनर्जी डिफरेंस हो गया। तो ये तो एक्चुअल एनर्जी डिफरेंस हो गया, ये थ्योरेटिकल एनर्जी डिफरेंस हो गया। करेक्ट? Yes, sir. और ये जो स्टेबिलिटी है वो किसकी वजह से आई? ये जो एक्सप्रेस। Resonance की वजह से. आप एक बात बताओ, अगर इतना समझ में आया तो एक बात बताओ, ये जब रेजोनेंस एनर्जी है तो शैल आई से दैट रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्चुअल माइनस डेल्टा एच थ्योरेटिकल। करेक्ट? तो ये एनर्जी जो होगी वो रेजोनेंस एनर्जी होगी। करेक्ट? ये डेल्टा एच एक्चुअल है, थ्योरेटिकल है। ये डेल्टा एच एक्चुअल है, तो डेल्टा एच एक्चुअल माइनस डेल्टा एच थ्योरेटिकल, ये आ जाएगा, ये एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा मेरी एक बात बताओ, इस केस के अंदर ना पता है क्या हो रहा है? एक मिनट। इस केस के अंदर क्या हो रहा है? अगेन एनर्जी है ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। तो रिएक्टेंट के अंदर कोई भी रेजोनेंस नहीं है, तो ये एनर्जी चेंज नहीं होने वाली। ये तुमने प्रोडक्ट कैलकुलेट किया अपने हिसाब से, तो ये जो एनर्जी तुमने कैलकुलेट करी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की और बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू निकाला, तो ये जो डेल्टा एच आएगा वो थ्योरेटिकल आएगा। Yes, sir. अब एक बार बताओ, इस रिएक्शन में कौन स्टेबल हो रहा है, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट? Product. तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी? कम होगी और. प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी एनर्जी प्रोडक्ट की? चले से प्रोडक्ट की एनर्जी और कम हो गई, तो लेट्स से
this is the energy of new product P dash. तो ये रिएक्टेंट स्टार्ट हुआ और ये नया प्रोडक्ट बना, कोई डाउट? तो अब जो एक्चुअल एनर्जी निकल रही होगी वो इतनी निकलेगी, राइट? Yes, sir. So that is delta H of actual. Again delta H actual minus delta H theoretical. क्या देगा तुमको ये? Resonance energy. Getting it? Yes, sir. लिख लो इसको. See, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया. The thing is you have to solve level 1 and comprehension of नरेंद्र अवस्थी. कौन सा? Level 1 and comprehension. हाँ बस नरेंद्र अवस्थी का इसको लिख लो. I will meet you in the next class. ठीक है? In between I'll keep an extra class for problem solving of thermodynamics and thermochemistry. ठीक है? Okay. Shall we wind up the meeting, guys? Yes, sir. Okay. Bye, beta. Take care. Bye. Bye, sir. Bye. 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 Guys, say thank